Hello student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita ma'am, your science teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes for the subject science for classes 1 to 5th. Student, as you know, in our today's video I will show you a very interesting model through which you can, by seeing that model, I am definitely sure that you will be very glad to see that. Okay student, so the model name is the life cycle of a butterfly. So let's start our preparing model. Before preparing our model, I would like to explain a few things about the butterfly. Student, as you know that butterfly is a very interesting, very colorful insect that everyone wants to catch that, isn't it student? Am I right? Yeah, because everyone like it. You know student, butterfly जो है, it comes from the egg. When a butterfly lays eggs, from that egg caterpillar came out. After that the caterpillar convert into the larva, you can see that pupa. After that, when pupa grow older, it becomes a nice, very cute insect that we call the butterfly. So let's start our today's video. Students, so let's start our today's model, that is the life cycle of a butterfly. Material we required is 2 or 3 white sheet we required. If you want to use if you have this styrofoam plate, then you can use that. But if you don't have the styrofoam plate, then taking a plate, you have to wrap it like that I have wrapped this plate onto this, within this white sheet. Okay student, this will act as our styrofoam plate. I have used this glass paper for making the butterfly. You can use the pearl also, but I didn't have the pearl, so I have wrapped the gram with the white sheet. Pencil, stick like this, scissor, and student glue for pasting. For coloring. Now we will start making the butterfly. Student, firstly we make the tree leaves with on this white paper. Okay student, see here I have completed the tree leaves. You can color it with green colors. These are our tree leaves that we will paste. Okay student, now on this tree leaves we will paste our beads. Okay student, so let's start pasting. After pasting student, this will look like this. Okay, we will put it aside. Now we will take the another leaves. On this we will make the caterpillar. Student, see how we will make the caterpillar. Student, to making the caterpillar, we will wrap this strip onto the pencil like this. Okay student, see I have made this caterpillar face by using white sheet colored with yellow, and now I have made it like this. We will paste this onto the face of this. Okay student, let's paste it. Student, see देखिए, इसको बनाते बनाते इतनी भूख लग गई थी इसे कैटरपिलर को कि इसने आधे लीव्स भी खा ली. Okay, I have made our caterpillar. It's looking so nice now. Let's start making the pupa. Student, for making pupa we need cotton. See, we have made our pupa and we will wrap it into this white polythene cover. Okay student, like this. You can see that we will wrap it like this. Okay student, and paste it with white sellotape. Student, our pupa is ready. Now we will make the butterfly. Okay student, उस शीट को हम इस तरीके से 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स में. Student, you can see like this, and by folding it
into zigzag motion. स्टूडेंट इस तरीके से इस शीट को हम फोल्ड करके पूरा कंप्लीट रेडी करेंगे। स्टूडेंट सी, जब हम इस शीट को फोल्ड कर लेंगे ये कुछ इस तरीके से लगेगी एंड आफ्टर दैट वी फोल्ड इट लाइक दिस एंड पेस्ट इट। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दोनों को फोल्ड करने के बाद कुछ हमारी बटरफ्लाई इस तरीके से दिखेगी। ओके, यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, लेट्स सी हाउ। स्टूडेंट नाउ इस लीव्स पर हम इस बटरफ्लाई को पेस्ट करेंगे एंड ये दो मैंने स्ट्रिप कट की है। वी विल मेक इट देयर एंटीना लाइक दिस। यहाँ से इसकी एंटीना हम बनाएंगे स्टूडेंट। ओके, आफ्टर मेकिंग कंप्लीट लेट्स सी हाउ आवर बटरफ्लाई लुक्स। से स्टूडेंट हम इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल पेस्ट इट ऑन दिस लीफ। ओके स्टूडेंट सी, देखिए हमारी बटरफ्लाई रेडी है। नाउ वी विल पेस्ट इट वन बाय वन ऑन दिस प्लेट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट पेस्टिंग वर्क। Here we have pasted our egg, I mean to say that our butterfly's egg. Now we will paste the caterpillar. Here we have pasted our caterpillar student. Here we paste our stick. On this stick we will paste few leaves student that we have made. Now student, we will paste our pupa. I have stick it with the sellotape. This is our pupa ready. Okay student, now on this corner we will paste our butterfly leaves. So student, like this. Now over the whole life cycle of a butterfly ready. Now we will mark with them and write with color. Now see student, देखिए I have written the names of this. This is the egg student, when butterfly lays egg. Okay, after that, after few weeks it becomes into the caterpillar, and after caterpillar when grow it older it becomes pupa. It forms a you can say that a thread like structure in which it lives, and when after few times or few days it becomes into a butterfly. Okay students, so this is the life cycle of a butterfly, you can see it. Okay student, we have completed our today's model. So goodbye student and enjoy your day. Good morning students, I am Anjita Yadav, your SST teacher. Dear students, today I will start your SST class online. Students, as you also know, our school has started special coaching classes for various competitive exams. Beta, whatever I will read you, it will be help in your competitive exams. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स एंड कैपिटल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को इंडिया के मैप में फिल कर दिया था। आज हम उससे नेक्स्ट स्टेट्स और कैपिटल्स रीड करेंगे। हमारा जो 5th स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। 6th है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। 7th स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और 8th स्टेट है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेट्स को हम अपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप में फिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसके अंदर हमने 4 स्टेट, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड और थर्ड हमारा स्टेट था पंजाब और 4th हरियाणा स्टेट को हमने फिल कर लिया था और ये बताया था कि ये स्टेट कब बना। आज हम 5th स्टेट जो हमारा है राजस्थान, ये सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, मतलब लार्जेस्ट स्टेट है, इसके बारे में रीड करेंगे। राजस्थान। राजस्थान स्टेट कब बना? 30 मार्च
1949, यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्टेट बना था। जो राजस्थान है ये मेनली दो पार्ट्स, यानी कि जो ये अरावली जो रेंज है यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अरावली रेंज के इधर का जो एरिया है वो डेजर्ट क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, और इधर का जो क्षेत्र है वो ग्रीनरीज है। क्योंकि जैसे ही जो अरावली रेंज है इधर से हिमालय से जो हमारी जो हवा आती है, बारिश का जो वो बादल होते हैं वो अरावली रेंज से टकराते हैं और इस एरिया में बारिश होती है ईस्ट क्षेत्र में राजस्थान के। और वेस्ट जो इसका क्षेत्र राजस्थान का वो कैसा रह जाता है, डेजर्ट। और वेस्ट क्षेत्र में राजस्थान का जो वेस्ट पार्ट है इसके अंदर पानी की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ने एक कैनाल बनाई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो वेस्ट राजस्थान में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के अंदर। फिलहाल जो यहाँ के सीएम है वो है अशोक गहलोत। हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर जयपुर में भी, जो मेन जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में, और एक बेंच उसकी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान कैपिटल भी क्या है, जयपुर। विधानसभा की यानी कि जो लेजिस्लेटिव सीट्स है राजस्थान के अंदर वो कितनी है, 200, और लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीट्स 10 हैं। तो बेटा राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और राजस्थान कब स्टेट बना, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अब हमारा जो 6th स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात। 6th हमारा स्टेट है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात कब स्टेट बना, 1 मई 1960। 1 मई 1960 को गुजरात एक स्टेट बना। इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। यहाँ के फिलहाल जो सीएम हैं वो कौन है, विजय रूपाणी जी हैं। और 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है अकेले गुजरात की। जो तटीय क्षेत्र है वो गुजरात के अंदर कितने किलोमीटर का है, 1600 किलोमीटर का। गुजरात के अंदर जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो गुजरात में 182 हैं। कितनी सीट्स हैं, 182। लोकसभा की सीट 26 है और राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो कितनी है, 11 है। और गुजरात की कैपिटल हमने अभी आपको बताया गांधीनगर है। गुजरात से जो बाउंड्रीज लगती हैं स्टेट्स की वो कौन सी है, नॉर्थ में राजस्थान और साउथ ईस्ट में दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड महाराष्ट्र। और ईस्ट में मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है और एक कंट्री की भी बाउंड्री लगती है इसमें, वो है पाकिस्तान। इधर राजस्थान जो स्टेट है इसकी जो बाउंड्रीज है इसके अंदर वेस्ट में पाकिस्तान लगता है, नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा, नॉर्थ में पंजाब, इधर ईस्ट में यूपी और साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज इन दोनों स्टेट से लगती है। तो हमने 6th जो स्टेट है अपने फिल किए हैं अभी। 7th जो हमारा स्टेट है यहाँ पे है। और जो राजस्थान हमारा स्टेट है वो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो 2 स्टेट हमने फिल कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जब स्टेट बना था कौन सी डेट को, 26 जनवरी 1950, 1950। 26 जनवरी 1950 को महाराष्ट्र को एक स्टेट बना दिया गया था। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है। और सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर है। और हाई कोर्ट महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है। विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर, लेजिस्लेटिव जो सीट्स हैं वो हैं 288, 288। लोकसभा की सीट है 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19। महाराष्ट्र से जो बाउंड्रीज लगती है जिन जिन स्टेट की वो है, इधर नॉर्थ की तरफ है गुजरात, नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में, और महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़,
और महाराष्ट्र के साउथ में इधर तेलंगाना, साउथ ईस्ट में, और बिल्कुल साउथ में कर्नाटका, और इधर ये छोटा सा स्टेट है गोवा। तो महाराष्ट्र की जो बाउंड्रीज हैं वो, और महाराष्ट्र के वेस्ट में अरेबियन सी। नेक्स्ट हमारा जो 8th स्टेट है वो ये सबसे छोटा स्टेट है, यानी कि इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट क्या कौन सा है? गोवा। गोवा के कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा को स्टेट कब बनाया गया? 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा को एक स्टेट बना दिया गया था। गोवा के अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स है गोवा के अंदर। कौन कौन से? नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। प्रेजेंट जो सीएम है गोवा के वो है प्रमोद सावंत। हाई कोर्ट जो है इसके अंदर वो कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट है। एक बेंच जो है इसकी गोवा में भी है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 है। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 40 सीट्स, और लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 8 स्टेट्स कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने हिमाचल प्रदेश किया। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या थी? शिमला। और हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया 25 जनवरी 1971 में। सेकंड स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और इसको स्टेट बनाया गया है 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। थर्ड स्टेट है पंजाब कैपिटल चंडीगढ़। फोर्थ है हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और पंजाब हरियाणा को अलग कब किया गया है? 1 नवंबर 1966 में, यानी कि हरियाणा को एक नया स्टेट बनाया गया 1 नवंबर 1966 में। फिफ्थ स्टेट है हमारा राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान को एक स्टेट बनाया गया 30 मार्च 1949 में। सिक्स्थ हमारा स्टेट हमने फिल किया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और गुजरात को एक स्टेट बनाया गया 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में। नेक्स्ट हमारा 7th स्टेट है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र को एक स्टेट बनाया गया 26 जनवरी 1950 में, 1950 में। 8th हमारा स्टेट है गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा को एक स्टेट बनाया गया 30 मई 1987 में, 30 मई 1987 में। So dear students, I hope you understand in these states and fill in these states in your map. Thank you students. A very good morning dear students. I am Bala Yadav, your math teacher in MLP International School, Rajpura. Okay, let's start our reasoning classes and our topic is coding, decoding. Okay, let's see our topic coding and decoding. And our first question is, if Delhi is coded as, दिल्ली को हम ऐसे कोडेड में लिखते हैं 73541 and कलकत्ता as, कलकत्ता को हम ऐसे लिखते हैं 82589662. How can Calicut be coded? तो कलिकट को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए बेटा, दिल्ली के लिए है ये कोड। तो देखिए बेटा, डी के लिए क्या है? 7, ई के लिए क्या है? 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी के लिए हमारे पास है 7, ई के हमारे पास है 3, एल के लिए हमारे पास है 5 एंड एच के लिए हमारे पास है 4 एंड आई के लिए हमारे पास है 1। ऐसे ही कलकत्ता में देखें, सी के लिए है 8, ए के लिए है 2 और एल के लिए है 5। और यहां पर भी हमारे पास एल के लिए था 5, तो इसका मतलब एल के लिए 5 है दोनों में। सी के लिए पहले भी क्या था? 8 और अभी भी क्या है? 8। यू के लिए है 9, टी के लिए है 6, 2 बार टी है तो 2 टाइम्स 6 और ए के लिए है 2। तो ऐसे ही कालीकट के लिए हम क्या लिखेंगे? तो सी के लिए हमारा क्या कोड था? 8, ए के लिए हमारे पास है 2, एल के लिए हमारे पास था 5, आई के लिए हमारे पास है, इसमें दिया हुआ है 1 और सी के लिए हमारे पास है 8, यू के लिए हमारे पास इसमें दिया हुआ है 9 और टी के लिए हमारे पास है 6। तो अब ये हमारे पास आ गया 8 2 5 1 8 9 6। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो राइट है, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन।
Question number second is if team is coded as VGCO then life will be coded as, अगर हम टीम को लिखते हैं कोड में VGCO तो हम लाइफ को हम कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, लाइफ टाइम टीम का हमने कैसे किया है, टीम के लिए टीम में 2 प्लस करते हैं, टी के बाद आता है यू और वी, तो सेकंड नंबर पे आता है वी हमने लिखा हुआ है, ई के बाद आता है, ई से हम आगे अल्फाबेट पढ़ेंगे ई एफ और जी, सेकंड नंबर पे आ रहा है जी, फिर ए के बाद बी और सी, ऐसे ही हम एम के बाद करेंगे एम, फिर एन और ओ, तो सारे नंबर 2 नंबर पे आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एक छोड़ के दूसरा नंबर है, सब में 2 2 प्लस की, ऐसे हम एल लाइफ में करेंगे, एल के बाद एम और एन, तो एन आ गया हमारा यहाँ पर, आई के बाद जे छोड़ के के, एफ के बाद जी छोड़कर एच और ई के बाद एफ छोड़कर जी, तो हमारा कोड आ गया एन के एच और जी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK हाउ इज कैंडल रिटर्न इन दैट कोड, अगर फ्रेंड के लिए ये कोड दिया है तो कैंडल के लिए क्या कोड होगा? तो देखिए बेटा, एफ के बाद हमने प्लस किया 2FGH 2 प्लस किया, आर के बाद 3 प्लस किया, आर के बाद ST और U तीसरे नंबर पर है, आई के बाद JKL और M, ऐसे पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 5 प्लस किया, 6 और 7 नंबर प्लस किए हुए हैं, आगे उसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हमारे पास कैंडल के बाद सी के बाद हमने 2 प्लस करना है, डी और ई, ई किस में है हमारे पास, सेकंड और फर्स्ट में है, बाकी ये 2 तो ऑप्शन हमें हमारा आया ही नहीं, तो अब इन दोनों में से हमें देखना है, फिर डी कैंडल के बाद ए के बाद आते हैं, देखो पहले हमने 2 प्लस करना है, फिर हमने 3 प्लस करना है, तो ए के बाद हमने ए के करेंगे बी सी और डी, 3 प्लस किया तो डी आ गया, इसमें डी और इसमें एस है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ जेड इज इक्वल टू 52 एंड एक्ट इज इक्वल टू 48 देन बैट विल बी इक्वल टू, जेड के लिए 52 है, एक्ट के लिए 48 है, तो बैट के लिए क्या होगा बेटा 46, कैसे होगा, चलो इसको चेक करते हैं। अल्फाबेट में जेड हमारा कितने नंबर पे आता है, 26 पे, 26 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 52 आ गया हमारा, ऐसे ही हमने एक्ट को लिखा, एक्ट के लिए होता है 1, ए के लिए 1, सी के लिए 3 और टी के लिए 20, अब हमने 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 20 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 2, 6 और 40, इन सबको प्लस किया तो 48, और एक्ट के लिए हमारे पास कोड था 48, ऐसे ही हम बैट का करेंगे, बी के लिए होता है 2, ए के लिए होता है 1 और टी के लिए 20, अब हमने बी का जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से किया 2 और 20 को 2 से किया 40, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, क्या आ गया हमारा आंसर 46, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ इज इक्वल टू 5 एंड 10 इज इक्वल टू 35 देन PAGER पेगर इज इक्वल टू, तो क्या होगा 47, कैसे होगा, देखो बेटा ABCD में E होता है 5 नंबर पर, अब इसको चेक करते हैं, PEN, P होता है हमारे ABCD में 16 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर और N होता है 14 पे, इन सबको हमने जोड़ किया तो 35, ऐसे ही हम पेगर लिखेंगे PAGER, P होता है 16 नंबर पर, A होता है 1 पर, G 7 पर, E 5 पर और R 18 पर, इन सबको जोड़ देंगे, हमारे पास आ गया 47, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको रिवाइज करना है, ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर था। ओके, थैंक यू। So students, today we start from our thought. Our today's thought is, if you focus on result, you will never change. But if you focus on change, you will get always good results. Students, it means अगर आप परिणाम की चिंता करेंगे तो आप कभी भी अपने आप में बदलाव नहीं ला सकेंगे, अपने आप में चेंजमेंट नहीं ला सकेंगे। और यदि आप बदलाव चाहते हैं और अपना प्रत्येक कदम बदलाव को चिंतन में रख कर चलते हैं तो आप अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट्स,
ये वर्डिंग्स आपकी स्टडी के लिए भी लागू होते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको अपने आप में चेंजमेंट करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आज से ही आप ये ठान लें कि हमें पढ़ाई करनी है, अपने आप में चेंजमेंट लाना है और गुड रिजल्ट गेन करना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। स्टूडेंट्स, आप ये सोच के चलेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे, अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। So students, in previous class we have learnt our important national and international days. Today we proceed our topic and start from 25. We have done our 24 important days in previous class. Let's start. World Student Day. When we celebrate our World Student Day, it is on 17 नवंबर। 17 नवंबर को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एडल्ट डे। व्हेन वी सेलिब्रेट अवर वर्ल्ड एडल्ट डे, इट इज ऑन 18 नवंबर। 18 नवंबर को हम वर्ल्ड एडल्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड सिटीजन डे। वर्ल्ड सिटीजन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर। 19 नवंबर को हम वर्ल्ड सिटीजन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे। इट इज ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। और स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना है, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे है और वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। इट इज ऑन 5 जून एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज ऑन 26 नवंबर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इट इज ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट वन इज नेवी डे। इंडियन नेवी डे बोल सकते हैं इसको। इंडिया का जो नेवी डे है वो हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। नेक्स्ट इज गर्ल चाइल्ड डे। इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? गर्ल चाइल्ड डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हम गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। Our next important day is National Energy Conservation Day. It is on 14 December. National Energy Conservation Day. It is on 14 December. Next one is किसान दिवस। किसान दिवस, हम इंडिया का किसान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? It is on 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। व्हेन वी सेलिब्रेट अवर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इट इज ऑन 10 दिसंबर। वी सेलिब्रेट अवर डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑन 10 दिसंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस फंड डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस फंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आवर लास्ट इम्पोर्टेंट डे इज एक्समस डे। एक्समस डे को और हम क्रिसमस डे भी बोल सकते हैं। क्रिसमस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इट इज ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम एक्समस डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक्समस डे को और हम क्या बोल सकते हैं? इट इज क्रिसमस डे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न आवर important national and international days, and today we also complete our this topic. I hope you understand this topic. Please write it in your fair notebook neatly and cleanly. Thank you students. Good morning students.
मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज का सुविचार है, नकल से डिग्री प्राप्त की जा सकती है परंतु ज्ञान नहीं। इसका अर्थ है कि नकल करने से हम डिग्री तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता, यानी कि हम उसको अच्छे से सीख नहीं पाते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें जीवन में नकल नहीं करनी चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब हम अपना सुलेख शुरू करते हैं और हमारे सुलेख का विषय था समय का महत्व। अगर हमने समय के महत्व को नहीं पहचाना तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। जो लोग आलस्य में अपना जीवन बिता देते हैं, उनके पास अच्छे कार्यों के लिए समय ही नहीं बचता और उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। समय मानव के लिए एक वरदान है। एक वरदान है। जो इसका सदुपयोग करता है, उसके लिए समय खुशियों और प्रगति के द्वार खोल देता है। और जो इसे
नष्ट करता है उसे समय भी नष्ट कर देता है। तो बच्चों, आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, from today I will prepare Sainik School for Navodaya School and DTC and other competitive exams. Students, will surely this syllabus will come in your competitive exam, so don't miss this class. Friends, today's topic present perfect continuous tense part first. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने लास्ट क्लास में इसको रीड किया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा है, से रही है, से रही है एंड प्लस टाइम। टाइम डिनोट होता है इसमें। एंड विदाउट टाइम दिस टेंस इज नथिंग। टाइम के बिना यह टेंस क्या होता है, कोई मायने नहीं रखता, इसकी सेंस नहीं बनती प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है हमारी हैज़ बीन एंड हैव बीन। वर्ब की हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंपल फॉर्म यूज़ होती है। एंड हैज़ बीन यूज्ड विद ही सी इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन। हैज़ बीन हमारा ही सी इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होता है। एंड हैव बीन हमारा किसके साथ यूज़ होता है, आई यू वी दे एंड एनी प्लूरल पर्सन के साथ यूज़ होता है। और इसमें मेन होता है सिंस और फोर। सिंस किस में यूज़ होता है, फोर किस में यूज़ होता है, देखो अब। सिंस यूज्ड विद डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। सिंस हमारा निश्चित समय के लिए हमेशा यूज़ होता है। निश्चित समय वो होता है जो कि एक डेफिनेट समय होता है। देखिए फॉर एग्जांपल संडे, मंडे। वीक अगर हम वीक का नाम लेते हैं 2 days 4 days, ये कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन हमारा संडे नेम मीन्स वीक का नेम गिवन है, ठीक है। संडे मंडे यानी निश्चित समय है। मार्च मई महीनों के नाम है, निश्चित समय है, ठीक है। 1920 एंड 1930 हमारी ईयर्स की क्या है, सन फिक्स्ड है हमारी। फेस्टिवल नेम हो गए एंड फिक्स टाइम ऑफ वॉच। हमारा जो टाइम होता है जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं या 4 o'clock, ये जो टाइम होते हैं कौन से टाइम होते हैं, हमारे डेफिनेट टाइम होते हैं। और डेफिनेट टाइम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर यूज्ड विद इनडेफिनेट टाइम। हमारा फोर यूज़ होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होते हैं, जिसमें कोई भी निश्चित समय डिसाइड नहीं होता, जैसे 2 hours 4 hours 2 months। फॉर एग्जांपल देखो 2 days, अब इसमें वीक में है 2 days है, लेकिन ये नहीं पता संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। और 4 days इसमें भी हमें गिवन नहीं है कि कौन सा डे है, पर्टिकुलर डे का नेम गिवन नहीं है। 2 years इसमें नहीं पता 1920 2018 है, इसमें भी नहीं है। 4 years इसमें गिवन नहीं है, सॉरी 4 years FOUR 4 years। 2 months कोई गिवन नहीं है, कौन सा है, अप्रैल है, मार्च है, अक्टूबर है, नवंबर है, कोई गिवन नहीं है। एंड 2 hours नहीं पता, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कुछ नहीं पता। एंड 4 hours इट एक्स्ट्रा। समझ गए, अनिश्चित समय और निश्चित समय। सीन्स और फोर यूज़ होगा, सीन्स हमेशा यूज़ होगा डेफिनेट टाइम के साथ और फोर हमेशा यूज़ होगा इनडेफिनेट टाइम के साथ। फिर है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एंड हैव बीन क्या होते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसमें सीन्स और फोर हो रहेगा, सीन्स प्लस फोर फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू क्लास। स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें विशेष कक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल, जिसके लिए हम कर रहे हैं विशेष कक्षाएं। और उसमें जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1 जुलाई से हम करा रहे हैं डिफरेंट स्टडी, जिसमें हम आपको कराएंगे व्याकरण, प्रेरणादायक
कहानियाँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होती है। कहानी सभी बच्चों के मनपसंद टॉपिक होता है, तो आज हम आपका मनपसंद टॉपिक ही कराएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और उसमें एक सीख भी छुपी होती है जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती है और हमें सफलता के रास्ते बताती है। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ध्यान। आज की हमारी कहानी है राजा और मकड़ी। पढ़ते हैं कहानी। एक बार एक राजा था, उसके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, यानी उसे हराकर उसका सब कुछ छीन लिया। उसके महल, घोड़े, खजाने जो भी हैं वो सब कुछ छीन लिया। राजा ने अपना राज्य वापस लेने की कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा, यानी कामयाब नहीं हो सका। उसकी सारी सेना भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपनी जान एक गुफा में छुपकर बचाई और वह जान बचाकर भागा और उसने अपनी जान एक गुफा में छुपकर बचाई। राजा हिम्मत हार चुका था, मतलब वो मन से हार चुका था। तभी उसकी नज़र दीवार पर चढ़ रही एक मकड़ी पर पड़ी। वह बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक मकड़ी जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, चढ़ती है और गिरती है, चढ़ती है और गिरती है। तो ये सब कौन देख रहा था? वो राजा देख रहा था। लेकिन हर बार गिर जाती। वो कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही थी और वो गिर जाती थी। मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी, मतलब बार बार कोशिश करती रही, उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर वह चढ़ने में सफल हो गई, कामयाब हो गई, वो दीवार पर चढ़ गई। राजा को ये देखकर हिम्मत आ गई। राजा को भी देखकर हिम्मत आ गई कि जब एक मकड़ी में इतनी हिम्मत हो सकती है, वह बार बार कोशिश कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने फिर से सेना इकट्ठी की, यानी अपनी ताकत बढ़ाई और बड़ी हिम्मत से आक्रमण किया और जीत हासिल की। राजा ने फिर से अपनी सेना इकट्ठी की, अपनी पावर को बढ़ाया और उस राजा पर पूरी हिम्मत के साथ आक्रमण किया और जीत हासिल की, यानी कि अपना सब कुछ उसने वापस ले लिया। अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी आज का क्या है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जैसे अभी हाल ही में भी कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी आतंक हमारे जीवन में मचा रहा है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और इसका भी हमें हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, तो एक दिन हम इसमें भी सफल हो जाएंगे। अब इस कहानी को हम एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कहानी को क्या है हमारी? राजा और मकड़ी। एक बार एक राजा था, उसके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, उसे हराकर सब कुछ छीन लिया। राजा ने अपना राज्य वापस लेने की कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसकी सारी सेना भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपनी जान एक गुफा में छुपकर बचाई। राजा हिम्मत हार चुका था। तभी उसकी नज़र दीवार पर चढ़ रही एक मकड़ी पर पड़ी। वह बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार गिर जाती। मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी, आखिर वह चढ़ने में सफल हुई। राजा को ये देखकर हिम्मत आ गई। उसने फिर से सेना इकट्ठी की, अपनी सारी सेना उसने फिर से इकट्ठी की, अपनी पावर को बढ़ाया और बड़ी हिम्मत से आक्रमण किया और जीत हासिल की। मतलब आखिर में उस राजा को जीत हासिल हुई, उसको अपना सारा कुछ मिल गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए और हम कामयाब जरूर होते हैं। धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning. As you know, nowadays you have a lot of time, so it's time to improve your handwriting. So let's start. Is if you commas you
want, to, sign, like, a sun, comma, first, burn, like, a sun, full stop and commas close. इट मीन्स यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलाओ खुद को. नाउ वी विल स्टार्ट और कर्सिव राइटिंग. रिया, was a happy girl full stop. She did not let little things in life upset her full stop. But one day comma something happened to her full stop. It seemed like everything had gone wrong full stop. First comma she
So students, please write this cursive writing in your notebook, and thank you. Have a nice day.